Hmm. Good afternoon, everyone. I am Rana Ravi from MSME and Startup Committee ICAI. I would like to welcome our speaker CA Sachin Dargan sir and our coordinator CA Juhi Goyal ma'am for MSME Pathsala session 42. Ma'am, over to you. Good afternoon, everyone. It's my esteemed privilege to introduce our esteemed speaker for today's webinar, CA Sachin Daganji, who is a managing partner at a Big Pocket, a dynamic organization specializing in personalized financial solutions for small and medium enterprises. With over 17 years of extensive experience in the banking sector at reputed institutions such as Standard Chartered Bank, Yes Bank, and ICICI Bank. Sachinji brings extensive in funding and financial services tailored to business needs. And moreover, at Big Pocket, he leads a team of seasoned chartered accountants and banking professionals to lead a diverse range of services, including secured and unsecured business loans and mutual fund investments. Having the partnerships with over 30 financial institutions, Sachinji ensures bespoke solutions that align with the unique requirements of each client. So please join with me in welcoming Shri CA Sachin Daganji. Thank you, Juhi ma'am. Thank you so much for introducing me. And good afternoon, all of my CA colleagues and other professionals who are there listening to us. Uh, so today I am bringing a detailed analysis for all the MSME products which a bank introduced, and all the banks have formed for various MSMEs basis the various directions of RBI as well as Government of India. And also we will be discussing about the challenges we face by MSMEs in various banks and how we should overcome those challenges. And then obviously we will be discussing about the role of a chartered accountant professional as a professional opportunities for these kind of issues which MSMEs faced. So thanks again. Now I am starting. I think you can see the slide here and the presentation. So we will be going through slide by slide, and whichever questions, if any of you would be having, you can please write down on your presentation on your desk, and then we can discuss maybe in a half an hour's time. So it wouldn't be feasible for all the questions to be answered at the end of the PPT. Rather, we will be discussing the say 4, 5, 6, 8 questions after half an hour's time. So starting, so I'll be covering the topics, the definition of MSMEs in India, and so how the MSMEs are defined and how they are formed. Then why MSMEs are important for India and our country, and what are the benefits to these MSMEs given by the Government of India or RBI. Then what are the various schemes of Government of India for MSMEs funding? Obviously there are numerous schemes which have been formed, and we will be discussing the ones which are very important and very popular. Then there are various loan products which have been designed by banks for various MSME sector. Then how the assessment of loans is in banking is covered. So basically the chartered accountants are generally aware of the financials, the how the financials are formed or the audit is done, but they are not have a good knowledge about how the banks assess various loan products for various MSMEs. So we will discuss all these in details, and then the challenges being faced by MSMEs, and then the solution to these funding challenges. So firstly we are coming on the definition of MSME. Earlier the definition of MSME used to be only related to the investment in plant and machinery, and there was no other criteria for that. And that definition you can see on your screen. It was for micro, the investment should be less than 25 lakhs for and that was for manufacturing enterprises.
Similarly, for small enterprises, which is manufacturing entity, it was investment less than 5 CR, and then medium it was less than 10 CR. And about service industry or trading, so services. So when we are talking about service enterprises, basically the government covers the trading entities also there. So there the capping was 10 lakh rupees. For micro, investment was 2 CR, and the small, and then for medium it was 5 CR. So that means over and above, if the sorry, I think this presentation has been disconnected. I'm sorry, sir, to interrupt, but you are not audible. Yeah, now it's audible. And now I'm audible. Okay. Yeah. So I'm Yes. saying, so yeah. These classifications for 25 lakhs 5 CR or 10 crore would not be there if this limit exceeds, and that particular MSME organization or firm will not be considered as an MSME if they are exceeding these investments in plant and machinery. Now, so all the benefits which an MSME organization or firm was getting will not be there. That was an earlier MSME classification. Now the revised MSME classification, which has been given by the government of India, is that for all the manufacturing as well as services and enterprises together, it is only so it is not only the investment in plant and machinery, rather it has been the turnover also, which impacts a lot and which is also going to play a good amount of role for consideration of classification of MSME sector. Now here for micro, the investment should be less than 1 CR and turnover should be less than 5 CR. So even if the investment is less than 1 CR but turnover exceeds from 5 to 4 CR to 6 CR, then this will be considered as a small enterprises. Similarly, for small, it has been investment less than 10 CR and turnover should be less than 50 CR. And for medium enterprises, investment should be less than 50 CR and turnover should be less than 250 CR. Till last year, this classification was 100 CR for medium enterprises for turnover, but now this has been increased to 250 CR. So जो भी MSME sector में, so I'll be using both bilingual. I'll be English as well as I'll be using Hindi also, so that everybody understands this. तो टर्नओवर जो 250 करोड़ से ज्यादा जाएगी या इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ऊपर जाएगा, तो वो क्लासिफिकेशन एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन रहेगा, ना कि एमएसएमई रहेगा. सो व्हाई द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस क्लासिफिकेशन, बिकॉज that is something where the government of India is also promoting for these MSMEs to come up the curve and maximum benefits should be given to these enterprises. हम लोगों ने सुना होगा काफी बार कि लास्ट टाइम कि इतने ज्यादा इश्यूज आते थे जहां बिजनेस, मतलब इंडिया was not considered to be a pro business country earlier. See, I would say 10 years back or 15 years back, but now the scenario has changed. Whosoever wants to start the business, he or she can start with only a simple registration called the Udyam registration. I will come later on this, but so यहाँ तक अभी तक क्लियर है कि डेफिनेशन क्या है. अब सीएस के लिए क्या अपॉर्चुनिटी होती है जनरली, ये
कोई भी चाहे वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है, if they are MSMEs, probably they are obviously not aware of all these capping criteria. तो होता क्या है, so the moment they will cross turnover of more than 250 CR or investment in machinery more than 50 CR in a particular company, तो वहां पर वो सारे बेनिफिट्स खत्म होते हैं। तो उस चीज को इंटैक्ट रखने के लिए सीए में ऑब्वियसली गिवन एडवाइस टू देयर क्लाइंट्स कि आप एक और फर्म स्टार्ट कर सकते हैं अलोंगसाइड दिस योर एग्जिस्टिंग फर्म, सो दैट आपको वो जो बेनिफिट्स हैं दैट शुड कंटिन्यू इन एवरी फर्म, रादर देन सेम फर्म में इफ वी आर बुकिंग अ टर्नओवर ऑफ मोर देन 250 CR तो वो बेनिफिट सब खत्म हो जाएंगे। So this is one of the good professional opportunity for CA firms, and they will also, the clients will also understand this. Now we are going ahead. Now it's so Udyam registration I am talking about. So Udyam registration signifies the MSME as a priority sector. So जो भी उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाएगा, we will call it as a MSME sector. Other than this, there is no other criteria to identify. Obviously, हमारा criteria जो हमने definition में देखा वो तो है, but at the same time we have to register our entity in this MSME site of Government of India, so that there should be some identity. उस फर्म की एक आइडेंटिटी होगी कि ये उद्यम रजिस्ट्रेशन है और इसके हिसाब से ये सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में है, ये मीडियम है, ये स्मॉल है, या ये कोई और है अदर देन MSME है। So this Udyam registration is basically facilitated by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. We call it Ministry of MSMEs. और ये एक registration process is very simpler. In fact, no one has to pay anything to anyone. ये एक 5 मिनट का process होता है जो हर entity को करना ही चाहिए। हम लोग देखेंगे कि कितने जो छोटे उद्यमी हैं, they are out of this purview, they don't know about this MSME, और वो अपने जितने benefits हैं they are not able to take those benefits from the government or banks. So we are now going to this is just a simple I would say an example of a registration certificate which has been done for a particular entity, where you can see that Bangla Foods is the name of the entity. Then there is a type of enterprises called small enterprises written, then it's a manufacturing entity. And so these are the classification which is given by this Udyam registration certificate, and this generally this is renewed every year. So it takes only 5 minutes to register and then renew every year for maybe for another 5 minutes. तो उसमें अगर supposedly पिछले साल हम लोग कोई entity medium थी या micro थी, now that has it may so happen कि वो grow हुई है और वो small बन गई है, तो वो classification change होगी यहाँ पर, that's it. So you can see this. Now we are going ahead because there are lot many slides, and obviously questions will also keep coming. So now I'm coming on the segregation of medium enterprises, small and medium micro, small and medium. So इसमें so basically है क्या, ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि ओवरऑल हमारे इंडिया में कितने MSMEs हैं. So there are 65 million और 6.5 करोड़ MSMEs are there in India, जिसमें से सिर्फ 4 करोड़ ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड करा रखा है, यानी अभी भी 2.5 करोड़ MSMEs ऐसे हैं, they are not registered, they are actually running, but they don't know about this, probably because of the lack of knowledge, or probably they are based out in tier 1 or tier 2 or tier 3 cities. So अगर हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, जो हमारे 4 करोड़ MSME रजिस्टर्ड हैं, उसमें जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं वो 3 करोड़ 90 लाख हैं. दैट मीन्स अ ह्यूज चंक कम्स अंडर दिस, व्हिच इज अप्रॉक्सीमेटली 97%. Then comes small enterprises, which is 1.5%, and then medium, which is 0.8% only. And I'll tell you, हमारे जो as per Ministry of Finance also, जो टोटल 4 करोड़ रजिस्टर्ड हैं, उसमें से 1 करोड़ 36 लाख ही ऐसी हैं जो GST में रजिस्टर्ड हैं. बाकी यूनिट्स जो या तो GST में रजिस्टर्ड, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एज पर देयर
I would say the industry they are operating in. For example, petrol pumps, इसमें खाली VAT applicable है. Then there are publishers जहां पर कोई GST नहीं है, I mean zero GST, so they are not registered. But still there are lot many entities which are still not under the purview of GSTs, which जो GST register करवा सकते हैं. So total entities जो registered हैं GST में वो 1.45% है. So technically we can see that जो हम बात करते हैं हमारे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस जो MNCs हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो 500 करोड़ से ऊपर की हैं, इनफैक्ट 250 करोड़ से जो ऊपर हैं, जो MSMEs नहीं हैं, वो टेक्निकली 9 लाख एंटिटी हैं अक्रॉस इंडिया, क्योंकि बाकी सारी MSMEs हैं. वी कैन सी दैट. सो दिस मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क जो अभी हम हमारे CA भाइयों को आने वाला है और आ सकता है अगर वो इस चीज के ऊपर भी गौर फरमाएं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एरिया वेयर दे कैन गिव अ कंसल्टेशन एंड एडवाइस टू देयर क्लाइंट्स. नाउ अब मैं आऊंगा why MSMEs are being important, being promoted. क्यों ऐसा कर रहे हैं गवर्नमेंट? I think this is very much clear from the fact that there are 4 crore MSMEs और 6 crore 50 lakhs MSMEs, जिसमें से सिर्फ 9 लाख एंटिटीज हैं जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं 250 करोड़ से ऊपर के. तो अगर हम अपने जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, the one which is younger population who are starting their startups or going to form a company, they are the ones which should always be promoted, because हमारी maximum जनता उसी में cover होती है. And if you can see that on the slide, highest number of employment generation comes from MSME only next to agriculture. तो agriculture में जो employment है वो 15 करोड़ बंदे एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं, एंड इन MSMEs दे आर 12 करोड़ इन, सो टिल अगस्त 23. अभी ये इस साल में ये बढ़ के इसको सरपास कर जाएगा एग्रीकल्चर, दैट इज फॉर श्योर, बिकॉज माइग्रेशन इज हैपनिंग month on month, year on year, to from rural areas to urban areas, that we can see. Now there are separate, in fact, schemes which have been formed for women entrepreneurs also, so that Indian women should also be given a chance to form, get into the business and to run a business and startups, and they should also be financially independent. Then we can see that MSMEs contributes around 30% to India's GDP. 30% ये last year का डाटा है. यहाँ definitely it is growing almost 3 to 4% year on year. So probably in next 10 years ये GDP का 50% से ऊपर आ जाएगा, और उस केस में हमें we have no option but to promote MSMEs. Then if we talk about the exports only, तो एक्सपोर्ट्स में जो शेयर है MSME का वो 2023-24 में ऑलमोस्ट 46% था, which is a huge chunk. That means they are contributing to have a positive balance of payments for India, for in terms of India's exports, जो कि एक commendable, I would say commendable thing है. So we should promote this. So that is the reason government is promoting MSMEs. Now we are coming to what are all the benefits to MSMEs, क्योंकि ये हमारे CA भाई लोग जब जानेंगे तो ही उन्हें पता चलेगा कि वो क्या ऐसी चीजें हैं जो सजेस्ट कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को, अपने सर्कल्स में. सबसे बड़ी बात ये जो टैक्स बेनिफिट्स है, MSMEs कैन क्लेम वेरियस टैक्स बेनिफिट्स, एंड यहाँ पर इनकी जो टैक्स का स्लैब है वो 25% तक होता है, एंड जो प्रेजेंटिव स्कीम्स हैं उसमें तो ये और भी कम होता है. सो प्रेजेंटिव स्कीम्स आई थिंक एवरीबडी इज अवेयर ऑफ. जो सेक्शन 44 में आप किसी भी में एक ऐसी प्रेजेंटिव स्कीम जिसमें आप एक टैक्स डिक्लेयर करते हो, एक रेट डिक्लेयर करते हो, उस रेट के ऊपर आप अपना टैक्स दे सकते हो कि हमारी इतनी कमाई है. यू डू नॉट नीड, the client do not need to form any accounting work and everything. उसे सिंपल एक डिक्लेरेशन देनी है, बेसिस दैट दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस. सो इनिशियली जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे उद्यमी हैं, वो सेक्शन 44 में कवर होके अपनी इजी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं. अब बात आती है लोन्स की. जनरली क्योंकि मैं लोन्स की स्ट्रीम से हूं, तो लोन्स पे मैं आपको काफी ज्ञान दूंगा जो आगे स्लाइड्स, आने वाली स्लाइड्स हैं, बट अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूं. MSMEs को कोलेटरल फ्री लोन
कई अलग अलग तहत स्कीमों के तहत मिलता है, एंड आई विल एक्सप्लेन ऑलमोस्ट नॉट फुल बट यस मेजॉरिटी ऑफ द स्कीम्स in the coming slides. Or so MSMEs is also, so when we talk about MSMEs, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेक्टर फॉर्म किया है जिसे कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ये बैंक्स के लिए होती है। बैंक्स हैव बीन गिवन टारगेट्स टू डू द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टू सो दैट जो ये प्रायोरिटी सेक्टर में कवर होते हैं ये इनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिले। दे शुड नॉट बी स्टैंड बिहाइंड। अगर एक बहुत अच्छा चलता ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी अच्छी टर्नओवर है, सब चीजें हैं, वहां तो बैंक उसको वैसे ही लोन देगा। बट व्हाट अबाउट द वंस हु हैव स्टार्टेड देयर बिजनेसेस एंड हु डू नॉट हैव मच आई वुड से कनेक्ट्स इन वेरियस बैंक्स? सो इन दैट केस उसको कहीं ना कहीं कोई स्कीम होगी जिसके तहत उसको लोन दिया जाएगा। सो इनको जो प्रायोरिटी सेक्टर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन अ टारगेट ऑफ 40% ऑफ द लेंडिंग शुड कम फ्रॉम प्रायोरिटी सेक्टर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि एमएसएमईज के कई एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं लोन्स के लिए, बैंक्स प्रमोट करते हैं। वो रीजन यही है कि अगर बैंक्स अपनी लोन बुक का 40% एमएसएमईज को प्रायोरिटी सेक्टर को नहीं देते हैं, then in that case they will have no option but to purchase it from other bank or NBFCs। तो अगर आपने एक वर्ड सुना होगा कोलेटरल्स बायआउट या पोर्टफोलियो बायआउट, वो यही चीज होती है जिसमें आपको अपने टारगेट शॉर्ट अगर रहते हैं तो आप किसी दूसरी एंटिटी बैंक या एनबीएफसी से आप उसको खरीदते हैं और उसको 40% तक लेके आते हैं, सो दैट यू शुड नॉट बी गिवन एनी काइंड ऑफ अ पेनल्टी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रायोरिटी सेक्टर में आपके एमएसएमईज आते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर में आपके फार्मर्स आते हैं, आपकी एग्रीकल्चरल फंडिंग आती है और 3-4 चीजें, बट मेजर पोर्शन एमएसएमईज का होता है। तो एमएसएमईज फंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंक्स। Now the third benefit is government procurement. आप लोगों ने सबने सुना होगा that there is a marketplace called government e-marketplace। वहां पर इतनी तरह की स्कीम्स होती हैं जो गवर्नमेंट जब टेंडर निकालती है तो उनको एमएसएमईज को स्पेशल प्रिविलेज मिलती है। एमएसएमईज का एक टारगेट सेगमेंट होता है। इनफैक्ट डिफरेंट वेरियस पीएसयूज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैव बीन गिवन this guidelines to again manage a certain ratio that हर चीज आप large corporates या middle corporates को नहीं दोगे, rather there has to be certain percentage जहां MSMEs should be awarded that particular contract। तो वो कहीं ना कहीं वो भी मेंटेन होती है। जैसे बैंक्स हैव बीन गिवन अ 40% टारगेट, सिमिलरली government departments have been given a target by the government of India for MSMEs to promote so that they can also grow। Then there are various subsidies। जो सब्सिडी जैसे कुछ सब्सिडी होती हैं जो जैसे इफ यू मस्ट हैव हर्ड एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ये कहीं ना कहीं एमएसएमईज को सब्सिडी देती है। स्टेट गवर्नमेंट्स कहीं कितनी सब्सिडीज देती हैं, यू मस्ट हैव हर्ड। आज की डेट में अगर मैं बात करूं जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने उस गवर्नमेंट ने दे हैव गिवन अ सब्सिडी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल सब्सिडी कि अगर आपने सपोज 100 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट लगाते हो तो उसमें से 20% विल बी कैपिटल सब्सिडी विल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट, which is a huge incentive to anyone who is thinking of starting an entity in a various places। So obviously they will go to Jammu and Kashmir, and then I know where people there जो वहां इसीलिए मूव हुए हैं because they are getting a capital subsidy। तो वो कैपिटल सब्सिडी कहीं ना कहीं आपको आपकी जो कॉस्टिंग है वो कम करती है। गवर्नमेंट इसलिए करती है बिकॉज गवर्नमेंट हैज टू, वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू प्रमोट देयर ओन स्टेट्स। तो जहां अभी तक कहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ है वहां दे विल डेफिनेटली गो एंड गेट एंड आस्क फॉर वेरियस स्कीम्स टू come so that various persons can come in their state and they should be subsidized in any form। Then there is another benefit to MSMEs that their payments
are protected against the delayed payments to various suppliers. So generally what happens is कि अगर कोई एक, so we'll come later on this stage, but I'm just telling you कि एक MSMEs का एक, so there is a portal called समाधान portal, MSME समाधान portal, जहां पर जाकर आप अपना जो भी सेल्स आपने करी है, कुछ करी है, अगर आपका वो पैसा नहीं आया है इन अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, तो आप उसमें जाकर एक उसको रजिस्टर करके आप ये कर सकते हैं. वहां पर एक देयर इज एन काउंसिल कॉल MSME फैसिलिटेशन काउंसिल, जो एज पर MSME एक्ट 2006 के हिसाब से बनाया गया है, जहां पर वो काउंसिल आपको आपका पैसा जो रुका हुआ है, दे विल हेल्प यू आउट इन गेटिंग दैट पेमेंट. एंड नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट वहां मैं अभी आगे जाके बताऊंगा भी, वो सुपोजिडली एक MSME ने, हमारे किसी क्लाइंट ने माल बेचा और उसको एक टाइमलाइन डिफाइंड है 45 डेज तक, वहां पेमेंट नहीं आई है, right? In that case, they can go to a facilitation council, and facilitation council will ask that particular buyer कि जो हमारे क्लाइंट का बायर है, कि प्लीज कम ओवर एंड डिपॉजिट द फुल अमाउंट. Then that buyer cannot go to a district court, rather he will have to deposit the full amount to the facilitation council, and then the normal court will entertain him. So this is a huge benefit to the MSMEs where the payments are stuck. Then there is a bill discounting facilities of TREDS. ये सबने सुना होगा. TREDS is basically a bill discounting प्लेटफॉर्म फॉर वेरियस MSMEs, जहां पर आपकी डिस्काउंटिंग जो माल आपने भेजा है वो इजीली डिस्काउंट हो जाता है और पैसा डे 1 पर मिल जाता है. देन देयर इज अ वर्ड कॉल्ड ECGLS. ये जनरली कोविड-19 में हमें सुनने में आया था, जहां जब कोविड-19 हुआ तो जितने भी लोन्स थे, ऑब्वियसली बिकॉज नो इंडस्ट्री वाज वर्किंग, exceptionally only few industries were working, like dairy farms या 2-3 इंडस्ट्रीज थे, तो कहीं ना कहीं हमारा साइकिल स्टक था. उस केस में हम लोग जितना भी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया दैट ऑल द बैंक्स शुड बी given this advisory that they should give at least 20% of the amount, 20% of the total outstanding loan for a particular entity should be given, should be disbursed in the account of that particular client, irrespective उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है या कैसा नहीं है, और वो फिर धीरे धीरे लिया जाएगा उनसे. So that was a huge benefit to MSMEs. So these are all about benefits. Then there is now there are various schemes for Government of India also to MSMEs funding, as I was talking about. तो ये जनरली बैंक्स, सो होता क्या है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब कोई स्कीम निकालती है तो वो और कोई नहीं, रादर एक बैंक, जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं या प्राइवेट बैंक्स हैं, दे गिव दिस एडवाइजरी टू RBI, एंड RBI गिव्स दिस एडवाइजरी टू वेरियस बैंक्स कि ये स्कीम्स हैं, इन स्कीम्स में आपको अपने क्लाइंट, अपने जो डिफरेंट अपनी सेगमेंट है और जो आप जहां पर भी बेस्ड हैं, उनको ये स्कीम्स बता के उनको फंडिंग दीजिए. तो पहली स्कीम है स्टार्टअप इंडिया स्कीम. देन देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम. देन देयर इज अ CGT MSE. इट्स अ वेरी पॉपुलर स्कीम और ये हर किसी CA ने सुना होगा. एक CGT MSE करके स्कीम है. देन देयर इज अ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. देन ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग, ट्रेड्स जैसे मैंने बताया. फिर SME IPO. ये SME IPO अब शुरू हुआ है, थोड़ा वैसे पुराना है, बट नाउ everybody is also coming into SME IPO. I'll tell you about later in the stage. And then MSME समाधान पोर्टल जो मैंने बताया, और एक सेक्शन 43BH, इस पे भी हम बात करेंगे in coming slides. So Startup India, first slide is Startup India. So Startup India, so basically this is nothing but that was introduced in 2016 only, but ये इसमें जोर अब इसलिए पकड़ा है because नए entrepreneurs आ रहे हैं, they are starting their own business, they are the very highly educated people who do not have resources with them, but they have the skills
to start a business and to introduce an innovative products so that इंडिया ग्रो कर पाए. और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी करी जिसमें 10 करोड़ तक का अमाउंट कोलेटरल फ्री कैन बी गिवन बाय द बैंक्स टू वेरियस स्टार्टअप्स. अब स्टार्टअप्स है क्या? स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या है? स्टार्टअप की कोई डेफिनेशन नहीं है. स्टार्टअप सिर्फ उसको कहेंगे जो 10 साल से पुरानी कंपनी ना हो, एक. And the second thing is that should be registered in the DPIIT. So Department of International Trade. ये इसमें एक स्टार्टअप को इंट्रोड्यूस करना है, एक रजिस्टर करना है. वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम लोग करते हैं, कई और प्रोफेशनल्स हैं वो भी करते हैं फॉर वेरियस एंटिटीज which we can speak later on this individually, but ये हम करते हैं और ये कई लोग करवा के अपना 10 करोड़ तक का कोलेटरल फी सपोर्ट ले सकते हैं किसी भी बैंक से. हाउएवर बैंक ऐसे किसी को पैसा, ऑब्वियस सी बात है, ये जो लिखी हैं चीजें ये बैंक्स ने कहीं ना कहीं को अपना पूरा ड्यू डिलिजेंस करके ही उस एंटिटीज को, उस फर्म को पैसा दे सकते हैं. किसी को भी सिंपली बिकॉज यहाँ लिखा है और देना है नहीं, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज एडवाइजरी गिवन बाय द वेरियस बाय द आरबीआई टू वेरियस बैंक्स कि आपने क्या क्या चीजें एक्सक्लूड करनी है, क्या क्या चीजें देखनी है. सो दैट ऑब्वियसली टेक्स इंडिविजुअल बेसिस. हर क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है, किस क्लाइंट का ट्रैक ठीक है, किस क्लाइंट का सिबिल ठीक है. वो वी विल कम लेटर, ऑब्वियसली वी आर कवरिंग ऑल द स्लाइड्स हियर. तो दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है. एक तो 10 साल से पुरानी एंटिटी नहीं होगी, दूसरा ये रजिस्टर होगी डीपीआईआईटी में. देन सो होता क्या है, स्टार्टअप में आपने 10 करोड़ तो दे दिए, या किसी का 2 करोड़ के लिए एलिजिबल है 2 दे दिया, बट देन गवर्नमेंट जो ऐसा कर रही है उसके लिए वो कहीं ना कहीं अपना रेवेन्यू भी चार्ज करती है, बिकॉज दीज स्कीम्स आर हाईली प्रीमियम पेड इंश्योर्ड स्कीम्स जहां पर इंश्योरेंस कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं. तो उसका जो रेवेन्यू है दैट हैज टू बी given by what क्रेडिट जो ये स्कीम है स्टार्टअप स्कीम, इसके लिए कहीं ना कहीं एक इंश्योरेंस कवर करना होता है जो बैंक करता है ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट. सो वो क्लाइंट से ही पैसा चार्ज करते हैं जिसकी एनुअल गारंटी फीस होती है 2%. सो दैट हैज टू बी गिवन पर एनम बेसिस बाय द पर्टिकुलर क्लाइंट टू इट्स बैंकर, और वो बैंकर उस इंश्योरेंस कंपनी को देगा जो गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव होगी. सो दैट इन केस ऑफ डिफॉल्ट ये पैसा इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट को दे और गवर्नमेंट बैंक्स को वापस दे पाए. So shall we cover any question if we are coming, Juhi? Yeah, we do have few questions. So Yeah, please. let me start. One of the participant has asked about banks are insisting securities for sanction of loans to MSME, but also practically it's not possible for the MSME to have those securities. So how to overcome this issue? Yes, it's a good question. In fact, that is the one which we were talking about. तो as I said कि जो schemes हैं, ये schemes बिल्कुल ideal schemes हैं. वो schemes obvious सी बात है कि banks have to give their own due diligence. They have to see many parameters of financials as well as non-financials. तो if we talk about financial parameters,
सो क्योंकि हमारे सीए भाई हैं तो वो बड़े आराम से इस चीज को समझ लेंगे कि कैपिटल, जो एक कैपिटल होती है बिजनेस की, दैट हैज टू बी देयर। ऐसा नहीं है कि आप कैपिटल अपनी नहीं डालेंगे और सब कुछ यू विल आस्क फ्रॉम द बैंक ओनली। तो कहीं ना कहीं आपकी कैपिटल इन्वॉल्व होगी उसमें, एंड दैट कैपिटल टू डेट टू इक्विटी रेशियो should be around 3:1 or 4:1 depending upon the client to client. Then there has to be, there should not be any movement of funds from your business to any other venture. आज आपने कुछ एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें पैसा डाला, आपने उसी बिजनेस में एक कुछ शेयर्स का काम शुरू किया, तो दैट मीन्स यू आर डाइवर्टिंग योर मनी. So there should not be any diversion of funds. तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है दैट यू मस्ट हैव अ क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रीपेमेंट्स. अगर कोई लोन आपने पास्ट में लिया है तो एक एक इंजन है जिसे कहते हैं सिबिल आपने सबने सुना होगा. सिबिल जो है वो हर बैंक देखता है, जिसमें आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड कवर हो जाता है, वो दिखता है सारे बैंक्स को. नाउ दैट ट्रैक रिकॉर्ड मस्ट बी वेरी सेटिस्फैक्ट्री और कहीं कोई डिफॉल्ट्स नहीं होना चाहिए. प्लस ये जो मैंने आपको बुलेट पॉइंट्स में दिए हैं, ये आर ओनली द बुलेट पॉइंट्स, राइट. अब उस पूरी स्टार्टअप इंडिया स्कीम में ये लिखा हुआ है कि इफ एनी पर्सन हैज एनी प्रॉपर्टी, कोई भी एक प्रोपराइटर, सपोज इफ ही इज अ प्रोपराइटर ऑफ अ बिजनेस और उसके पास अपना बिजनेस की प्रॉपर्टी है या अपने घर की प्रॉपर्टी है, स्टिल ही इज आस्किंग फॉर unsecured loan, then banks may not give. Why? Because banks will ask कि भाई you must give your own property as a collateral. Why you are not handing over that collateral to us, and why you are only asking for unsecured loan? क्योंकि आज की डेट में जो कोलेट्रल या जो प्रॉपर्टी जिसमें वो रह रहा है, अगर वो रेंटेड नहीं है और वो ओन्ड है, देयर हैज टू बी सर्टेन रीजंस दैट कि वो प्रॉपर्टी उसमें क्यों नहीं आ रही है, एंड अकॉर्डिंगली बैंक विल डिसाइड कि वो अनसिक्योर्ड करना है या नहीं करना. देयर आर लॉट ऑफ क्लाइंट्स जहां पर हम लोगों ने स्टार्टअप फंडिंग करवाई है या सीजीटीएमएससी करवाया है, बट देन वहां देयर मस्ट बी सम सॉलिड रीजंस फॉर दैट. So that is the answer of your question. Next question we have, it's like if 2 or 3 companies from the same promoters are formed with a view to avail MSME benefit, will it be allowed? Is there any group companies concept in MSME? Yes, that will be allowed. However, the government will the bank will definitely look at the group company concept. They will not. So if they are giving a loan to company A, then they will definitely take as a guarantor or a corporate guarantor or a co-applicant to the company B, which is a group company. It cannot be that both of the companies should be assessed independently. No, even if a client wants funding in various group companies, still he can avail it. But then all the companies will be looked at from the consolidated point of view. उनका consolidated financials देखा जाएगा and basis that दोनों में funding दी जाएगी. Okay, funding will be provided. यहाँ पर एक चीज और कवर करना चाहूंगा कि आपस में सेल परचेज अगर होगी तो किसी को भी लोन नहीं मिल पाएगा. Okay. So we should not have the intercompany sales and purchases in these companies. Okay. Yeah. Next question is regarding if any of the MSME or CGTMS wants to require any of the loan, the collateral is must, or it can be funding can be done without the collateral. Yes, I have already told you that these CGTMSC scheme is an or startup scheme. I'll be covering the CGTMSC scheme also in this upcoming slides, but I'm telling you these are the unsecured schemes only. CGTMSC is
credit guarantee trust of Government of India where guarantee based funding is done. तो वहां कोलेटरल का कोई सवाल नहीं है. हाइब्रिड फंडिंग भी होती है, आधा कोलेटरल लिया और कुछ CGTMSE में बुक किया. वी ऑल्सो डू दिस फंडिंग. तो वो मैं आगे आगे आने वाले टाइम में अभी कवर करूंगा ये सारी चीजें. Okay. So, as you have told about us the TREDS, the bill discounting facility which we have in the TREDS, is it also available for the export sales? ट्रेड्स इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्सपोर्ट सेल्स. एक्सपोर्ट सेल्स के लिए अलग से एक एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट है जो एक्सपोर्ट की गारंटीज लेते हैं. Okay. बट ट्रेड्स में ट्रेड्स डिस्काउंटिंग के लिए एक्सपोर्ट नहीं है. एक्सपोर्ट के लिए मैं आपको कवर करूंगा एक और ये मैंने स्लाइड कवर करी है प्रोडक्ट्स में. वहां पर आई टेल ऑल ऑफ द ऑडियंस कि वहां एक्सपोर्ट में कैसे आप डिस्काउंटिंग करा सकते हैं. Okay. So, till now only these questions were there. We can move ahead. Yeah, we are going ahead. Yeah, we are going Thank ahead. you, sir. Then, yeah, thanks. Then we are covering the scheme by scheme. What are the various programs which have been introduced? This one is Prime Minister's Employment Generation Programs. ये generally है क्या? ये basically Prime Minister's now, because you know everybody knows that जो इंडिया की जनरेशन है इट्स अ यंग जनरेशन. तो कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयमेंट के एक तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, साथ में दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स so that they can ultimately give employment to various other peoples. तो कहीं ना कहीं अब ये जो पर्टिकुलर एक स्कीम है ये बड़ी वी वुड से अगर बिकॉज वी आर जनरली मोस्ट ऑफ अस आर सिटिंग इन आई बिलीव इन अर्बन एरियाज लाइक दिल्ली, मुंबई, गुजरात, एवरीवेयर. तो वहां पर जो ये अमाउंट है वो अमाउंट बहुत छोटा माना जाता है. इस वजह से हम लोगों को इस प्रोग्राम का पता नहीं है. बट ये बहुत एक ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है जहां पर ये उन सेक्टर को दिया जाता है जो एक ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं या खादी विलेज में काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट में काम करते हैं, हैंडलूम्स में काम करते हैं. वो एंटरप्रेन्योर्स ये ले सकते हैं जिसकी मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी उनके प्रोजेक्ट की, उनको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवा के देनी पड़ेगी जिसमें 25 लाख तक का वो प्रोजेक्ट होना चाहिए जो मैन्युफैक्चरिंग में है, और जो सर्विसेज में है वो 10 लाख तक का. यहाँ पर द गवर्नमेंट विल बियर 25% of the total cost of that project they will only bear. Similarly for urban areas ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो सब्सिडी मिलेगी ये 10% होगी, जहां जो रूरल एरियाज है वो 25% होगी. और हम लोगों को सिर्फ अपना 10% ही डालना है, बाकी सब कुछ बैंक फंडिंग करेगा. तो कहीं ना कहीं ये एक बेनिफिट है जो जनरली बैंक्स को दिया हुआ है. अगर हम लोग अपने बैंक में जाकर अपने क्लाइंट्स के बैंकर्स के बात कर इन्हें बात करेंगे, डेफिनेटली दे विल टेल अस कि ये चीजें हैं. बट बिकॉज हम लोग ये बात करते नहीं है कहीं, तो ना ये हमारी ना क्लाइंट को पता चल पाता है, ना हमारे लिए कोई हमारे सीए भाइयों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी निकल पाती है प्रोफेशनल. तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, छोटे क्लाइंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Then we are coming to CGTMSE जो हमने किया था, जो अभी किसी एक ऑडियंस ने बात करके पूछा था कि ये CGTMSE में सिक्योर्ड भी होगा या नहीं होगा. तो ये CGTMSE जब हम बात करते हैं दैट मीन्स कि वो हम गारंटी बेस्ड लोन की बात कर रहे हैं. ये गारंटी देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू वेरियस बैंक्स. लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं बैंक्स को दैट दे शुड अप्लाई देयर ओन असेसमेंट टू फाइंड आउट विच ऑल फर्म्स आर एलिजिबल फॉर अनसिक्योर्ड फंडिंग. हर किसी बंदे को वो नहीं दे सकते हैं, और 75% से 85% तक ये गारंटीज एक्सटेंड की जाती है बैंक्स को. बाकी 25 या 15 या 25% नहीं की जाती है. उसका रीजन ये है क्योंकि बैंक अदरवाइज होगा क्या, सारे बैंक्स हर बंदे को अपना एक्सटेंशन देना शुरू करेंगे, क्योंकि दे मस्ट बी नोइंग कि एनपीए कुछ होगा नहीं, सब कुछ बैंक गवर्नमेंट से आ जाएगा पैसा.
That is the reason कि government is restrictive to extend the guarantee to various banks. So वो 75% की restriction है उनके उसमें. Generally secured होता क्या है when we approach to our particular bank, तो बैंक ये कह सकता है, उन कई बैंक्स के पास ये प्रोडक्ट है कि वी विल गिव यू, सपोज एक कोई 2 करोड़ रुपए का अपना मकान लेके गया कि वी हैव अ, आई थिंक दैट हैज बीन डिस्कनेक्टेड. Just give us a 2 minutes. There is a technical issue. Will resolve very soon. Yeah, hi Juhi, can you hear me? Okay, so now I was on CGTMSE. CGTMSE में काफी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए. जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा था दैट सपोज एक क्लाइंट है जिसको 5 करोड़ रुपए चाहिए, राइट? अब वो 5 करोड़ के लिए बैंक इज नॉट दैट मच आई वुड से कंफर्टेबल टू गिव 5 CR. तो उस केस में हमें
बैंक को अगर हमारे क्लाइंट के पास कोई एक प्रॉपर्टी है जो 2 करोड़ की है, तो देन इन दैट केस हम लोग जाके बोलते हैं कि that we have a collateral also which is of the value of 2 CR, and then you also give us some funds in the form of CGTMSE, in the form of CGTMSE. So कहीं ना कहीं वो हमारा, just hold on. So banks offer these kind of combo products. We call it hybrid CGTMSE product, जहां हमें वो 3 करोड़ मिलेगा और 2 करोड़ 5 करोड़ टोटल मिल जाएगा. हमारे क्लाइंट को जितनी रिक्वायरमेंट है, we will be able to fetch that amount from bank. At the same time, bank would be safe because bank would say that we have at least a collateral of 2 CR. तो कहीं ना कहीं बैंक would feel safe and they will extend that much of amount which is required by the client. अब आती है बात कि हम ये देते कितना है, बैंक्स कैसे करते हैं. तो इसमें थंब रूल तो यही होता है 20 से 25% ऑफ द टर्नओवर. सपोज कहीं उसका जितना प्रॉफिट होगा, सो ये ग्रॉस प्रॉफिट होगा. इन दैट केस वो जो अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वॉल्व है वो हाई होता है. वहां पर टर्नओवर का जो साइकिल है दैट इज आई वुड से स्लो एज कंपेयर टू द ट्रेडर्स. जहां ट्रेडर 30 दिन में पैसा ले आता है अपने डेटर से, वहीं मैन्युफैक्चरर को टाइम लगता है बनाने में, उसको स्टॉक करने में एंड देन बेचने में और रियलाइज करने में. तो वो कहीं ना कहीं टर्नओवर का जो परसेंटेज है वो बैंक्स बढ़ा कर देते हैं टू अ मैन्युफैक्चरर विज ट्रेडर, जहां पर वो टर्नओवर का परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ डेट कम होता है. तो जनरली थंब रूल ये होता है कि 25 से 30% टर्नओवर का बैंक्स देते हैं टू अ मैन्युफैक्चरर. एंड फॉर अ ट्रेडर और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ये जो परसेंटेज होती है 20% रह जाती है टू इन वेरियस बैंक्स. फॉर अ ट्रेडर 20% फॉर अ ट्रेडर एंड 25 और 30% फॉर अ मैन्युफैक्चरर. अब ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है सीजीटीएमएससी में, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सीजीटीएमएससी जो है वो एप्लीकेबल सिर्फ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है. एज द नेम सजेस्ट, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. ये मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए नहीं है. दैट मीन्स 50 करोड़ से ऊपर टर्नओवर क्रॉस करते ही हमारा एंटिटी, हमारी जो सेगमेंटेशन है दैट विल कम अंडर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. दैट मीन्स जो भी फैसिलिटीज हैं वो वहां से विड्रॉ हो जाएंगी. सो दैट ये हमारे सीए भाइयों को ध्यान रखना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि अगर कोई जिस टाइम हमने सीजीटीएमएससी कराया तब 30 करोड़ 40 करोड़ की टर्नओवर थी, और अगर वो टर्नओवर बढ़ती है तो वो पैसा अपने क्लाइंट, हमारे क्लाइंट्स भाइयों को वापस देना पड़ेगा. सो विच इज वेरी क्रूशियल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पर कई बार ना बैंकर्स को ये चीज ध्यान रहती है ना क्लाइंट को. सो सीए हैज टू बी वेरी कॉशियस कि जहां सीजीटीएमएससी हम दे रहे हैं और वो बॉर्डर लाइन केस है, जैसे 45 करोड़ की टर्नओवर है, उसको अगर सीजीटीएमएससी दे दिया, नेक्स्ट ईयर वो 50 क्रॉस कर ही जाएगा. जैसे ही क्रॉस किया, दैट मीन्स यू विल हैव टू रीपे ऑल द फुल लोन्स on a single shot, which is very difficult for any company. So that was important. And then और इस केस में मैं और बता दूं कि सीजीटीएमएससी में भी क्रेडिट गारंटी फीस लगती है. वो फीस डिपेंड करती है अमाउंट टू अमाउंट. जनरली वो स्टार्ट होती है 0.6% से एंड देन इट गोज टू 1.1%, जो कि ये अमाउंट परसेंटेज पहले ज्यादा होता था 2%, जो आज की डेट में वो स्टार्टअप में है. अगर हमने देखा हो स्टार्टअप में जो गारंटी फीस है वो 2% है, यहाँ वो कम है. उसका रीजन ये है बिकॉज ये जो सीजीटीएमएससी है ये एक एस्टेब्लिश्ड फर्म और कंपनी को मिलती है. अगर इसके कम से कम 3 साल पूरे हुए होने चाहिए, देन ओनली बैंक्स विल गो अहेड टू गिव द फंडिंग. और ये फंडिंग जनरली 90% केसेस में ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में होती है. आप अपने टर्म लोन की फॉर्म में ले सकते हैं या किसी और प्रोडक्ट की फॉर्म में ले सकते हैं.
तो उस केस में ये मिनिमम 3 इयर्स की ऑडिटेड बैलेंस शीट बैंक मांगता है। अगर वो हमारे पास नहीं है, हमारे हमारे कंपनी का कोई फॉर्म चेंज हुआ है, कोई हमारा क्लाइंट जिसकी फर्म हुआ करती थी प्रोप्राइटरशिप, एंड नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कंपनी, तो हमें वो प्रीवियस फॉर्म के फाइनेंशियल्स देके ये प्रूव करना होगा कि ये सेम ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 3 साल क्रॉस कर लिए हैं एंड दे आर एलिजिबल फॉर लोन्स। नाउ कमिंग टू अदर प्रोडक्ट, जस्ट hold on. या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये सबने सुना होगा कि मुद्रा योजना है प्रधानमंत्री की, जिसमें 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, और वो बिल्कुल सही बात है, और वो हम लोग किसी भी बैंक में जाके कर सकते हैं। बैंक अपना ड्यू डिलिजेंस करेगा इसमें, और सीजीटीएमएस स्टार्टअप में यही फर्क है कि ये बड़े छोटे अमाउंट का होता है। जनरली ये लोन्स देते हैं 50,000 से लेके 10 लाख तक। इसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं। कोई शिशु, इसमें स्टेजेस हैं: शिशु दैट मीन्स चाइल्डहुड, किशोर दैट मीन्स टीनेज, तरुण दैट मीन्स यू आर नाउ एल्डर, यू हैव बिकम एल्डर वन। तो ये स्टेजेस इनकी डिफाइंड हैं, उस हिसाब से ये पैसा देते हैं 50,000 से 10 लाख तक। और ये बिल्कुल कोलेटरल फ्री लोन होता है, लेकिन ये ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में नहीं होता, ये टर्म लोन की फॉर्म में होता है। 5 साल के बीच में रीपेमेंट इसकी करनी होती है, और ये सिर्फ माइक्रो और स्मॉल के लिए दिया जाता है। देन कमिंग टू ट्रेड्स, ट्रेड्स का अभी किसी ने क्वेश्चन पहले भी पूछा था, तो अभी हम यहाँ बता देंगे ये ट्रेड्स होता क्या है। ट्रेड्स इज बेसिकली ए ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइडे आरबीआई। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट सो ये फैसिलिटी है क्या? ये डिस्काउंटिंग है, रिसीवेबल डिस्काउंटिंग, जैसा नेम बता रहा है, नेम सिग्निफाइज कि एक हमारा एक कोई भी क्लाइंट जो एक फर्म है वो सेल्स करती है, तो वो एक इनवॉइसेस रेज करती है, एंड दैट इनवॉइस इज साइंड बाय द बायर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जो हमारे क्लाइंट का कस्टमर है वो ऑब्वियसली साइन करेगा, एंड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स का तो कोई इशू ही नहीं है, यहाँ क्रेडिट सेल्स की बात आ रही है। क्रेडिट्स में कोई भी हमारा क्लाइंट अगर सेल करता है तो वो इनवॉइसेस आर साइंड बाय दैट पर्टिकुलर कस्टमर और पर्टिकुलर आई वुड से बायर। अब उसने ये कंफर्म किया कि मैं आज, ओके अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम। So, guys, we are taking 5 minute break. I think there is some technical issue. We are coming back in just 5 minutes. Give us some time.
Yeah. Hi. Good evening. I'm sorry that there was some technical issues. Now I guess that has been resolved, and now my voice is also clear. Juhi, can you hear me? Yes, sir. Yeah. Okay. So we were on threads. So threads. So video is not clear, not visible. Just hold on. Now is it fine?
but now PPT is not visible, I guess. But sir, I guess we are okay if only the PDF is visible. PDF is Sorry. not visible. You can hear. Can you see that? No, PPT is not visible. Yeah, just hold on. Let me share it. Is it fine? Now both the PDF myself are visible. So we were talking about threads. Now am I audible, right? Yes, sir. अच्छा, सो ट्रेड्स में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा. आई विल हैव टू गो फास्ट बिकॉज ना टाइम इज आल्सो रनिंग आउट. ट्रेड्स में एक सप्लायर जिसको आपने माल भेजा एक पर्टिकुलर फर्म ने, एक एमएसएमई ने, उस सप्लायर का सुपोजिडली 60 दिन बाद पेमेंट आना है, राइट? सो व्हाट आवर क्लाइंट और दैट एमएसएमई वी आर टॉकिंग अबाउट, वो क्या करेगा, ट्रेड्स में जाएगा. नाउ बोथ द पार्टीज नीड्स टू बी रजिस्टर्ड ऑन ट्रेड्स. वो ट्रेड्स में रजिस्टर करेगा और रजिस्टर करने के बाद वो ये बताएगा कि ये पार्टी को इतना माल मैंने भेजा, वो इनवॉइस रजिस्टर होगी. एंड देन आफ्टर दैट उस इनवॉइस को एक्सेप्ट करेगा वो सप्लाई वो बायर जिसने वो माल खरीदा है, जो एक हमसे, जो हमारा क्लाइंट है, हमारे क्लाइंट का कस्टमर है, राइट? सो इन दैट केस इसमें मैं आपको बताता हूँ फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन होगी कैसे. आई एम गोइंग ऑन द अदर साइड. इसमें होता क्या है, सबसे पहले डिलीवर, सो यू कैन सी दैट द सेलर डिलीवर्स दिस गुड्स ऑन क्रेडिट एंड इट इश्यूज एन इनवॉइसेस एंड दैट इज अपलोडेड ऑन ट्रेड्स. ये जो इनवॉइस होगी ये एक्सेप्टेबल इनवॉइस होगी, जो एक्सेप्टेड इनवॉइस होगी बायर की. बायर ने ऑलरेडी इस इनवॉइस को पहले एक्सेप्ट कर लिया है, माल जा चुका है. अब उसके बाद बायर, दैट बायर इज आल्सो लॉगिंग इन द ट्रेड्स एंड देन ही विल एक्सेप्ट दैट ट्रांजैक्शन ऑन ट्रेड्स. वो ट्रेड्स पर वो इनवॉइस एक्सेप्ट कर लेगा. लेटर ऑन ट्रेड्स दैट द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इट गिव द इंफॉर्मेशन टू द बायर्स बैंक विच लिंक्स द बायर्स अकाउंट टू द इनवॉइस. तो जो बायर्स के बैंक को एक इनवॉइस चली जाएगी कि ये इनवॉइस है, ये एक ट्रांजैक्शन हुई है. सेलर एक बिड, सो बेसिकली सो एक जो सेलर है जिसने माल दिया है, जिसने गुड्स दिए हैं, he will choose a bid from a financier. So there are lot many financiers comes on the trades. So पहली और दूसरी ट्रांजैक्शन, पहली और दूसरी जो ट्रांजैक्शन है, जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, उसके बाद एक पॉइंट जो स्किप हुआ है इसमें वो ये कि there will be lot many financiers who will bid for the rate of interest, right? तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो बिड एक्सेप्ट कर लेगा फाइनेंसर की, वो सेलर होगा. बिकॉज सेलर को एक्सेप्ट इसलिए करनी पड़ेगी बिकॉज ही इज द वन हु हैज सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट. तो वो जैसे ही एक्सेप्ट होगी, सेलर उस जो फाइनेंसर है, ही विल क्रेडिट द गुड द अमाउंट इनटू द सेलर्स अकाउंट. तो आज मैंने माल बेचा, फाइनेंसर यानी बैंक ने मुझे पैसा दे दिया डे 1 पर, राइट? उसको डिस्काउंट करके, और उसमें वो जो 60 दिन का इंटरेस्ट है, that will be borne by the buyer itself, right? तो पैसा आज सेलर को मिल गया, बायर को ये पता है कि मुझे पैसा 90th डे पे देना है, तो वो 90th डे पर बायर को एक मैसेज जाएगा 90th डे और 60th डे से पहले, दैट ये ड्यू डेट है, आपको पेमेंट करनी है. नाउ वो पैसा दैट बायर विल मेक द पेमेंट इन दैट अकाउंट. अगर सुपोजिडली वो पेमेंट नहीं होती है, तो इस केस में सेलर वुड बी रिस्पॉन्सिबल, ऑल्दो बायर वुड बी कंसीडर्ड इन डिफॉल्ट, बट सेलर हैज हिज ओन, I would say his own responsibility to give the amount to the bank, right? अब इसमें होता क्या है, कई लोग इस चीज के लिए क्वेश्चंस भी आएंगे कि ऐसी कौन सा बैंक है जो बिना किसी सिक्योरिटी के, क्योंकि यहाँ कहीं सिक्योरिटी कुछ नहीं है, सिक्योरिटी है सिर्फ एक इनवॉइस, एक अग्रीमेंट बिटवीन अ सेलर एंड अ बायर.
लेकिन यहाँ पर एक सिक्योरिटी जो बैंक्स देखते हैं वो होती है द रेपुटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर बायर, जो बायर जो खरीद रहा है माल। फॉर एग्जाम्पल एक वेंडर जो एक मारुति के कंपोनेंट्स बनाता है और वो मारुति को अपना माल सप्लाई करता है, मारुति इज अ वेरी क्रेडिबल फर्म, तो मारुति के बेसिस पर वो उस इनवॉइस को डिस्काउंट करके उस ओईएम मैन्युफैक्चरर को पैसा दे देगा, कंसीडरिंग दैट आफ्टर 60 और 90 days विच एवर एग्रीड, that money will come into the account of the seller, because it's a reputational company called Maruti, तो वो पैसा कहीं मरने वाला नहीं है हमारा। बट अगर कुछ होता है तो इन दैट केस डिस्प्यूट रेज होता है और दोनों बायर एंड सप्लायर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट अल्टीमेटली जो कॉल ली जाती है वो उस बायर के ऊपर ली जाती है बैंक की। इसलिए बैंक कहीं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जनरली उनका डिस्काउंटिंग करते हैं, उस सेलर का बायर का डिस्काउंट करते हैं जहां बायर इज अ वेरी रेपुटेशन ऑफ वेरी गुड रेपुटेशन, या फिर उनकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट ग्रेड है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट ग्रेड, दैट मींस कि वो ट्रिपल बी, डबल बी प्लस और ट्रिपल बी है। उस केस में वो उसकी बिड को एक्सेप्ट करते हैं फाइनेंसर्स बेसिस द रिस्क विच इज इन्वॉल्व, एंड बेसिस दैट ये सारी ट्रांजेक्शंस होती हैं। सो आई एम गोइंग बैक इनटू दिस स्लाइड। ये ट्रेड्स का एक फीचर मैं आपको यही जो भी बताया था कि ये मल्टीपल फाइनेंसर्स इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर कोई एक फाइनेंसर नहीं होता उस। सो व्हाई इट इज इन्वॉल्व, बिकॉज हर बंदा ये चाहता है कि मैं एक अच्छी क्रेडिबल फर्म की डिस्काउंटिंग कर रहा हूं तो मैं एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में करूं और उस चीज में बेनिफिट मिलता है हमारे एमएसएमई क्लाइंट को। तो ये हमारे सीए भाइयों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कहीं ना कहीं ये डिस्काउंटिंग का फीचर उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एक कंसल्टेंसी कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग टू एसएमई आईपीओ। तो एसएमई आईपीओ जैसे आज नॉर्मली एक आईपीओ कोई भी एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लेके आता है, वहीं एक नॉर्मल एमएसएमईज वहां भी कहीं ना कहीं कितने ऐसे उद्यमी हैं, दे वुड वांट दैट देयर मनी शुड नॉट बी रेज्ड थ्रू डेट, रादर दे वांट दैट somebody else should also come with us and you know give us the money in the form of capital and not debt, in the form of capital, and they should invest in their you know MSME unit, and basis that this should be I would say they should grow। तो कहीं ना कहीं एमएसएमईज चाहे वो अभी 1% या 0.5% होगा, कहीं ना कहीं उन लोगों ने इस चीज का काफी ध्यान रखा है कि हम एक एज अ जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े। तो वहां एसएमई आईपीओ का कॉन्सेप्ट बहुत ही लुक्रेटिव लगता है। तो ये ऑब्वियसली रेगुलेशन सारी वैसी हैं, बट हाँ इसमें जो आई वुड से जो फ्लेक्सिबिलिटी है या जो लीनियंसी है वो बहुत कम है। बहुत ज्यादा कॉवेनेंट्स नहीं है इसके अंदर, बहुत ज्यादा कंडीशंस नहीं है जैसे एक नॉर्मल लार्ज कॉर्पोरेट्स में होती हैं आईपीओ के लिए। सिर्फ आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, आपकी नेटवर्क पॉजिटिव होनी चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में रहने चाहिए, एंड ऑब्वियसली योर नेट टेंजिबल एसेट्स मस्ट बी मोर देन 3 CR। सो दिस इज ओनली द कंडीशन। और इस वजह से आई थिंक हम लोग देख भी सकते हैं कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो एसएमई आईपीओ। यस, वी ऑल्सो समटाइम्स एडवाइस फॉर एसएमई आईपीओ, बट हम लोग इस चीज के अंदर वेंचर कर रहे हैं एज अ बिग पॉकेट, बट अभी हम लोग मेजरली डेट में हैं। तो मेरा ये पर्पस इसलिए था बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रीम विच इज ग्रोइंग। सो यहाँ पर अपने चार्टेड अकाउंटेंट भाई इस चीज में बहुत इंटरेस्ट दिखा सकते हैं और दिखा भी रहे होंगे, आई एम श्योर। एंड देन वी आर कमिंग ऑन दिस 43BH। ये इनकम टैक्स एक्ट ने 2024 में ये एक्ट, ये जो सेक्शन है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 23 ओनली। हाउएवर 24 में ये एनफोर्स हुआ था इस चीज के लिए कि ये आपकी जो भी पेमेंट्स हैं दैट हैज टू बी डन
to MSME suppliers within 45 days. This is the mandate prescribed by the RBI as well as this act. तो इनकम टैक्स एक्ट ने इसको इम्बाइब किया और वो 45 डेज का टाइम के बाद अगर वो पेमेंट होती है तो दैट विल नॉट बी अलाउड, रादर देयर आर सर्टेन पेनल प्रोविजंस which will be imposed on the buyer of that particular goods from MSME. तो वो 45 दिन का एक मैंडेटेड टाइम है जहां पर हमें वो करनी होगी, अदरवाइज सो बेसिकली होता क्या है, ये बेसिकली यू कैन से दैट इट्स अ डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एनी पर्सन for a payment which is to be done to MSMEs only on the actual payment basis, क्योंकि 45 दिन तो as good as actual हो गया, तो वहां पर ये पेमेंट करना जरूरी है. basis that only if business no so basis that this MSME payment has come into a picture. तो मुझे याद है 31st मार्च को, बिकॉज वो ईयर एंड होता है, so we were having a lot many queries from our clients कि भाई हमें लोन चाहिए because we need to make the payment to the particular MSMEs. और MSMEs डिफाइन कैसे होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? दैट वुड बी अ डिक्लेरेशन डन बाय अ पर्टिकुलर एंटिटी कि ये MSMEs हैं जिससे मुझे अपना लोन अपना पेमेंट करना है. सो जहां भी ऑडिटर इन्वॉल्व है, दैट ऑडिटर हैज टू गिव अ क्लियर नोटिंग while auditing that these are the MSME buyers, MSME suppliers which could not get the payment, and that has to be noted in those noting sections while auditing. So that was about the Income Tax Act, and which is a good benefit. So now I am coming on the loan products. So there are various loan products. We must have heard this. हमने काफी लोन्स काफी सुना होगा, सबने सुना होगा कि एक ओवरड्राफ्ट होता है, कैश क्रेडिट होता है, एक WCDL होता है. रादर आई विल टेल यू, अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो अगर आप इसको गो थ्रू करेंगे तो 4 या 5 प्रोडक्ट से ज्यादा आपने नहीं सुना होगा, बिकॉज आप डील नहीं करते हैं उसमें, जो हमारे सीए भाई हैं. आई थिंक ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये भी अभी सिर्फ 70% प्रोडक्ट्स हैं विच आई हैव रिटन ऑन द स्क्रीन. सो आई विल एलेबोरेट, बिकॉज ये जो 70% हैं ये हमारे एक्चुअल में, इफ वी टॉक अबाउट द क्वांटम और द अमाउंट जो फाइनेंसिंग होती है, ये 99% फाइनेंसिंग कवर कर जाते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स. नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ये शायद 70% होंगे, बट क्वांटम में ये 99% फाइनेंसिंग कवर करते हैं अक्रॉस ऑल द बैंक्स. तो पहला है ओवरड्राफ्ट. मैं वन बाय वन आता जाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा. तो डिफरेंस क्या है ओवरड्राफ्ट और सीसी में? पहला डिफरेंस ये है कि यहाँ पर कंप्लायंसेस बहुत होते हैं कैश क्रेडिट में, और कवनेंट्स होते हैं, जबकि ओवरड्राफ्ट में बहुत ज्यादा कुछ कंप्लायंसेस नहीं होते हैं. कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट इज बेसिकली रनिंग अकाउंट फैसिलिटी. जितना पैसा यूज करोगे उतना इंटरेस्ट लगेगा, अदरवाइज इंटरेस्ट नहीं लगेगा. देन देयर इज अनदर फैक्टर कॉल्ड करंट एसेट्स चार्ज. तो जहां भी कैश क्रेडिट इन्वॉल्व होगा वहां पर करंट एसेट्स के ऊपर बैंक चार्ज लेगा ही लेगा. तो बैंक सो करंट एसेट्स मींस जो स्टॉक है या बुक डेट्स हैं उनके ऊपर जो चार्ज क्रिएट होता है. देन देयर इज अ टर्म कॉल्ड ड्रॉइंग पावर. सो ड्रॉइंग पावर भी मैं आपको बता देता हूं होता क्या है. ड्रॉइंग पावर, सो बेसिकली सीसी और ओवरड्राफ्ट इज गिवन एज अ शॉर्ट टर्म फैसिलिटी टू वेरियस क्लाइंट्स. However, bank ensures that this amount of overdraft or CC needs to be used only and only in working capital and should not go elsewhere. So उसके लिए वो एक स्टेटमेंट लेता है जिसमें उसका हर महीने हर कंपनी से एक स्टेटमेंट आती है जिसमें लास्ट मंथ का कितना पैसा उसने स्टॉक में लगाया, कितना उसने डेटर्स में लगाया, कितना क्रेडिटर्स से पैसा आया. ये ड्रॉइंग पावर स्टेटमेंट हमें जस्टिफाई करती है जो हमें बैंक को देना पड़ता है. और ये कितने लोग इस चीज के लिए परेशान होते हैं कि ये ड्रॉइंग पावर ना देनी पड़े, बट क्योंकि वो कैश क्रेडिट लिमिट है तो वो हमें देना ही पड़ता है. देन देयर
कैश क्रेडिट जनरली जो दी जाती है वो स्टॉक और डेटर्स के लिए होती है, बट ओडी कई बार ऐसा होता है कि आपके नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सर्विस कंपनी है, अब वो सर्विस कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स तो बहुत ज्यादा है। सपोज आई हैव वन क्लाइंट ऑफ इन द फॉर्म ऑफ सैलून्स, राइट। अब वो सैलून्स में तो कोई ना कैश की उसकी सेल्स है और एसेट्स स्टॉक भी कोई इतना ज्यादा नहीं होगा, ना डेटर्स होंगे। देन इन दैट केस हमें उसको डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए उसको पैसा देना होगा, तो ओडी इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर देम। और जनरली ओडी सिर्फ 5 करोड़ तक दी जाती है, उसके बाद अगर वो रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो वो कैश क्रेडिट ही होती है। और इसलिए कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी था। देन आई एम कमिंग ऑन द कैश क्रेडिट। ओके, सो दिस इज द असेसमेंट। तो बिफोर आई गो टू असेसमेंट, मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ आपको प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि हो सकता है वी मे रन आउट ऑफ टाइम फॉर दिस असेसमेंट, बट मैं ये प्रोडक्ट्स आपको बताऊंगा। सो ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट हम लोगों ने समझ लिया। कैश क्रेडिट में होता क्या है, कैश क्रेडिट में जैसे हमने बताया कि ड्राइंग पावर ली जाती है, तो ओवरड्राफ्ट ऐसा होता है कि जहां पर कोई भी जनरली क्लाइंट्स जो हमारे एमएसएमई हैं वो यही कहते हैं, यार हमें हमें कोई कागज ना देने पड़े ज्यादा बैंक्स को, डे इन डे आउट, एक बार हमें लोन ले दो, बात खत्म। तो उस केस में ओवरड्राफ्ट काम आती है, जहां पर आपने जितना पैसा यूज करना है उतना पैसा आपने एक लिमिट सेट करी अकाउंट में और आप यूज करते रहे। जबकि कैश क्रेडिट में इतने कागज होते हैं, उसका रीजन यही है कि 5 करोड़ से ऊपर आते ही बैंक ऑल्सो वॉन्ट्स दैट देयर हैज टू बी सर्टन पैरामीटर्स जिसके ऊपर जिसके ऊपर एक क्लाइंट को असेस किया जाएगा ऑन अ वेरी हाई विद हाई ड्यू डिलिजेंस। तो वहां कैश क्रेडिट आता है। अब हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन की। सो ये वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन कुछ नहीं है बल्कि एक कैश क्रेडिट का ही पार्ट है, लेकिन इस केस में बैंक ये चेक कहता है, सपोज हमने 5 करोड़ की ओडी, या आई थिंक अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम। Right. So coming back on the working capital demand loan, अब वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन में हमें सो होता क्या है, आई वाज गिविंग एन एग्जांपल, जैसे 5 करोड़ रुपया एक लिमिट क्लाइंट को एक बैंक ने दी। अब बैंक क्या कहता है कि हमारा रेट 9.5%, सपोज 9.5% का रेट दे दिया, और उस अब जितना आप यूज करोगे उतने के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अब बैंक एक इंसेंटिव देने के लिए क्लाइंट को ये बोलता है कि आई एम रेडी टू गिव यू अ रेट 50 पैसा 50 बिप्स लोअर देन विच आई हैव ऑफर्ड इन क्रेडिट, अगर आप मुझे ये बोल दो कि मैं इतना अमाउंट तो यूज करूंगा ही करूंगा।
देन इन दैट केस वो जो सुपोजिटली क्लाइंट ये बोलता है कि मुझे 1 करोड़ ऐसा है जो मैं हर टाइम यूज करूंगा, आप मुझे इसका एक डिफरेंट लाइन बना के दीजिए, तो उसको हम कहेंगे वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन, जहां वो 1 करोड़ रुपया पूरा यूज रहेगा एंड क्लाइंट विल हैव टू बेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 9% in our example, lower than 9.5% on a full 1 crore. Even if that client doesn't use any limit in any day, still he will be charged 9% rate of interest on 1 CR for full year. तो वो एक ड्रॉबैक भी है किसी क्लाइंट के लिए, और बैंक के लिए फायदा इसलिए है बिकॉज बैंक ऑल्सो वांट्स दैट एटलीस्ट मिनिमम सम अमाउंट शुड बी यूज बाय द क्लाइंट। तो ये इसलिए इसको एक अलग लाइन और सब लिमिट हम इसे कहते हैं बैंकिंग लैंग्वेज में, सब लिमिट बना दी जाती है कैश क्रेडिट की, 5 करोड़ कैश क्रेडिट जिसका सब लिमिट हुआ 1 करोड़ या 2 करोड़ या 3 करोड़ वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन विच इज एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बात आती है लेटर ऑफ क्रेडिट की। सो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट is basically okay, let me go through letter of credit. Okay, I have given the assessment. So letter of credit मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। letter of credit होता है जहां when we have to purchase goods on credit, generally हम लोग LC और letter of credit सुनते हैं imports word में, जहां import करते हैं हम, but LC can be an international LC or it can be a domestic LC. तो वहां कहीं ना कहीं जो सपोज इफ टू बोथ बायर्स एंड सप्लायर्स आर नॉट नोन, आज मैं बैठा हूं इंडिया में, मुझे माल खरीदना है चाइना से, चाइना में अगर मैं एज एक उद्यमी एक इंपोर्टर हूं, तो मुझे आई डू नॉट नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ गुड्स जो चाइना वाला मुझे भेजेगा। सिमिलरली आज अगर मैं पेमेंट कर देता हूं तो वो गुड्स की क्वालिटी मुझे नहीं पता। सिमिलरली China, the person who is an exporter in that country, in China, he also doesn't know, अगर वो माल मुझे भेज दे पहले और मैं पेमेंट ना कर पाऊं, then in that case there is a solution or there is a document called LC जो मेरा बैंक खोलेगा on the bank of my importer, my exporter. So जो चाइना में बैठा है, इंपोर्टर मैं हुआ, वो एक्सपोर्टर हुआ, उसके बैंक के ऊपर एलसी खोल के मैं उस एलसी में अपने गुड्स का डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, मैं अमाउंट लिखूंगा, रेट लिखूंगा, टेनर लिखूंगा कि आप मुझे माल भेजेंगे और 90th डे पर या 120th डे पर मैं वो माल की पेमेंट आपको कर दूंगा। सो उस केस में दोनों का रिस्क मिटिगेट हुआ। पहला रिस्क ये कि जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा मुझे वही माल मिलेगा। इफ आई डू नॉट गेट that goods as per the description mentioned, then in that case I am not liable to pay anything to the importer, to the exporter. Similarly, if that particular exporter doesn't get any money and he is sending the goods as per the description in the LC, then in that case I have no option but to pay him, else my bank will pay on my behalf to the bank of exporter. तो वो मेरे बिहाफ पर मेरे बैंक को पेमेंट करेगा और मुझे डिफॉल्टर बनाकर मुझसे रिकवरी करेगा। प्लीज डू नॉट शट द डोर, वाईफाई इज नॉट वर्किंग, दैट्स द रीजन। सो इन दैट केस वो मेरे बिहाफ पर मुझे पेमेंट, उसको पेमेंट करके मुझे, सो आई विल बी डिफॉल्टर इन दैट केस। वी कॉल इट डिवॉल्वमेंट ऑफ एलसी, जहां एलसी डिवॉल्व हो जाती है। सुपोजिटली मैंने माल ले लिया, सब चीजें, अब 90th 60th और 30th डे पर मुझे पेमेंट करनी है, अगर नहीं कर पाऊंगा सो सिबिल, माय सिबिल वुड बी अफेक्टेड। सो वी शुड गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू आवर क्लाइंट्स। जितने भी मेरे सीए भाई सुन रहे हैं, इनको हमारे क्लाइंट्स को इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, बिकॉज एलसी डिवॉल्वमेंट इज अ ब्लैक स्पॉट ऑन एनी फर्म, और वो आप कभी भी उसको मिटिगेट नहीं कर सकते हैं। तो हालांकि आपको पेमेंट तो बैंक को करनी पड़ेगी, अदरवाइज बैंक विल एनफोर्स द जो कोलेटरल हमने दी हुई है। नाउ आई एम कमिंग टू बैंक गारंटी। बैंक गारंटी जनरली इन्वॉल्व होती है एक कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। हालांकि जो बड़ी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो भी बैंक गारंटीज लेते हैं। सो बोथ बैंक गारंटी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट आर नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स,
दे आर नॉट फंड बेस्ड लिमिट्स, यहाँ कोई भी पैसा नहीं दिया जा रहा टिल द टाइम वो डिफॉल्ट ना हो। जैसे एलसी में मैंने बताया डिवॉल्वमेंट होती है, बैंक गारंटी का इन्वोकेशन होता है। दैट मींस एक एक पर्टिकुलर पीएसयू है, सपोज गेल है, आज मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला गेल से, गेल टेल्स मी कि यू आर ओनली एलिजिबल इफ यू विल गिव अस a guarantee called performance guarantee of 10%, राइट? तो मैं आज अपने बैंक के पास जाऊंगा, पहले मुझे बिड करने के लिए उसकी गारंटी देनी पड़ेगी, बिडिंग गारंटी, राइट? वो बिड बॉट गारंटी जनरली कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 1 से 1.5-2% रहती है, और वो उसके बाद वंस आई गेट द कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद दे विल आस्क फॉर द परफॉर्मेंस गारंटी, जो जनरली 5 से 10% रहती है। आज की डेट में किसी किसी पीएसयूज ने उसको 3% भी कर दिया है। सो नाउ आई अगेन विल गो टू माई बैंक एंड विल आस्क कि भाई मेरे को अब ये इतने की इशू करके दो, बिकॉज आई हैव गॉट दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड नाउ आई हैव नो ऑप्शन बट टू गिव इट ईदर द बैंक गारंटी और गिव सर्टन सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ एफडी। तो आप मुझे बैंक गारंटी दे दीजिए। तो मैं एक अपने क्राइटेरिया देखकर बैंक लाइंस पर एक बैंक गारंटी इशू करूंगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। आई विल कम इनटू द assessment also later in the slides. Then we call it there is a product for exporters also, जैसे letter of credit is for importers, जो ये export packing credit is for exporters। अब एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट दो 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 हिसाब से चलता है, एक प्री शिपमेंट, एक पोस्ट शिपमेंट। सो होता क्या है ये एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट? ये जनरली ऐसे चलता है कि सपोज मैं आज बैठा हूँ एंड आई एम अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर, गारमेंट मैन्युफैक्चरर हूँ, एंड आई हैव टू एक्सपोर्ट द गुड्स टू यूएस बिकॉज मेरा वहां ट्रेड सेटल्ड है। अब आई विल गो टू माई बैंक and will ask that particular banker ki give me lines or limits in the form of export packing credit that can be maybe in the form of rupees or maybe in the form of USD। अगर हम USD या यूरो फॉरेन करेंसी की फॉर्म में लेंगे तो उस केस में हमारा थोड़ा सा बेनिफिट ये होगा कि फॉरेन करेंसी का जो रेट्स है वो कम है, तो हमें कम रेट लगेगा, राइट? बट देन वी हैव टू डू हेजिंग ऑल्सो। मैं सारी चीजें कवर करूंगा लेटर ऑन, बट मैं अभी आपको ये बता रहा हूं कि एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट होता क्या है। एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट प्री शिपमेंट के लिए होता है, जब आपने माल बनाना है और माल बेचना है, राइट? तो माल बनाने के लिए आपको स्टॉक लेना पड़ेगा, तो यू मस्ट हैव सम ऑर्डर्स इन हैंड सो दैट यू कैन गो टू द बैंक एंड आस्क हिम, मुझे ये $10 लाख का ऑर्डर मिला है, प्लीज गिव मी सम अमाउंट ऑफ क्रेडिट सो दैट आई कैन manufacture, I can procure the goods and manufacture the garments based on the specifications given in this order। बैंक मुझे एज पर देयर असेसमेंट वो अमाउंट 80% और 70% और 90% वो मुझे एक्सटेंड कर देगा। उसके बेसिस पर मैं स्टॉक बनाऊंगा, दैट में टेक मे बी 60 days, मे बी 90 days। उसके बाद वंस आई विल शिप दैट पर्टिकुलर स्टॉक टू द एक्सपोर्टर, तो वो प्री शिपमेंट वाला पोस्ट शिपमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो मैंने माल भेजा, एक्सपोर्टर को बिल भेजा थ्रू माय बैंक, वो बिल उस बैंकर के पास जाएगा, उसका एक्सपोर्टर के बैंकर, एंड दे विल एक्सेप्ट द बिल एंड बेसिस दैट दे विल रिटर्न इट टू अस। और जैसे ही वो एक्सेप्टेंस होगी, माल पहुंचेगा, बिल ऑफ लीडिंग, वी कॉल इट बिल ऑफ लीडिंग। तो वो बिल ऑफ लीडिंग जैसे ही साइन होके आएगा, ये प्री शिपमेंट फैसिलिटी कन्वर्ट हो जाएगी पोस्ट शिपमेंट में। दैट मींस अब आपने माल भेज दिया, अब देयर आर अनदर से 30 और 60 और 90 days in which you will be getting your payment from your customer और exporter। उसको हम कहते हैं पोस्ट शिपमेंट पैकिंग क्रेडिट लिमिट या फिर फॉरेन बिल डिस्काउंटिंग। सो ये चीजें समझ आई। अब हम आते हैं मशीनरी और बिल्डिंग टर्म लोन। ये बड़ा सिंपल है, सबने सुना होगा। जनरली होता क्या है, कोई प्रोजेक्ट हम लगाते हैं या कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है हमारा, हमें कुछ एक्सटेंशन करना है, तो बैंक्स विदाउट टेकिंग एनी कोलैटरल
कोलेटरल क्या होता है उनके पास? सिर्फ मशीनरी। तो मशीनरी के फॉर्म में लेते हैं और उस मशीनरी को खरीदने के लिए टर्म लोन्स देते हैं, या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है तो उसकी फॉर्म में वो टर्म लोन कर देते हैं। वो दैट टर्म लोन मे बी इन द रेंज ऑफ 3 years to 7 years। तो ये डिपेंडिंग अपॉन कि मशीनरी है या बिल्डिंग है या क्लाइंट कितने हिसाब से मांग रहा है, अकॉर्डिंगली टर्म। नाउ दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्रोडक्ट कॉल्ड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये जनरली बहुत प्रेवलेंट प्रोडक्ट है, बिकॉज यहां पर कोई कंडीशन नहीं होती है। आपको पैसा लेना है, आप पैसा लेते हैं बैंक से, और उसको जहां भी लगाना है अपने हिसाब से आप लगाते हैं। नो डाउट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आपको बैंक को बताना पड़ता है कि मेरा पैसा इस प्रोजेक्ट में जाएगा या इधर जाएगा, बट बैंक कोई अपना जिसे कहते हैं हम कंडीशंस नहीं लगाता या कवर्नेंट्स नहीं लगाता ट्रैकिंग करने के लिए। उसे एक हमें बताना पड़ता है ये हमें ये पैसा हमने इधर डाल दिया है, इस प्रॉपर्टी के लिए दिया था। वो प्रॉपर्टी के लिए भी हम ले सकते हैं। एक एक बिजनेस जो प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी लैप ले सकते हैं, और वो जनरली 12 से 15 साल के लिए पेबल रीपेबल होता है। देन आई एम कमिंग टू प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। इसमें बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, बट प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के साथ एक ब्यूटी ये है कि ये आप कोलेटरल अगर 50 रुपए की दे रहे हो तो ये आपको 100 रुपीज फाइनेंस कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक प्रोजेक्ट इन्वॉल्व होता है, और वो प्रोजेक्ट आपको पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के एक प्रेजेंट करना होता है बैंक को। तो ये जनरली तब होता है, या तो ये ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट हो सकता है या ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता है। ब्राउन फील्ड मीन्स वेयर वन customer or one person is already doing their own business. Now they are extending on another lines, so they want to set up another factory in some area, or they want to do their backward integration। तो उस केस में वो ब्राउन फील्ड कहलाएगा। और जो ग्रीन फील्ड होगा वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होगा जब बिल्कुल स्क्रैच से कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, वो ग्रीन फील्ड कहलाएगा। जनरली बैंक्स अवॉइड करते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, और पीएसयू बैंक्स उसमें कॉल लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स उतना कॉल नहीं लेते हैं। लास्ट प्रोजेक्ट जो प्रोडक्ट है वो है होम लोन्स टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज और पार्टनर्स। जो भी आपके क्लाइंट हैं, अगर वो होम लोन लेना चाहते हैं तो होम लोन अपनी तो उनकी इनकम कुछ नहीं है, वो इनकम कहाँ से आती है? सारी कंपनी अपने जो फर्म है, अपनी जो कंपनी है, इधर से आती है। सो इन दैट केस बैंक्स जनरली, ये कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं, ये बैंक्स जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं उनका प्रॉफिट्स लेके कंसीडर कर लेते हैं टू गिव द होम लोन टू द डायरेक्टर्स और पार्टनर्स ऑफ दैट कंपनीज, राइट? I think Juhi, would you like to take some questions out of what I have given? Yeah, we do have few questions. Yeah. Number one is question regarding can we take benefit of both subsidy under PMEGP and collateral free loan under CGT MSE together? I mean, the participant want to ask, can we take the both benefit under? आई थिंक अगर वो हमें एक भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। दो में नहीं ले सकते हैं, क्लियरली नो नो है। एक, बिकॉज यू कैन नॉट अवेल बोथ बिकॉज बोथ ऑफ दीज प्रोग्राम्स आर फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सीजीटीएमएससी भी ले लेंगे और प्रोग्राम प्रधानमंत्री योजना में भी ले लेंगे, नहीं, स्ट्रिक्टली नो नो। Okay. And the next question is, what's the normal discounting percentage and the interest? हाँ, so normal discounting percentage varies from 8% to 10.5%, 11% also. So why this variation is so high? कि जो 8 से 3% का मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए है because there are various financiers जो ट्रेड्स पे, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है वेयर एवरी फाइनेंसर कैन गो एंड बिड
फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंस. जितने ज्यादा बिडर्स होंगे, जितने ज्यादा फाइनेंसर्स होंगे, उतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम आएगा. रीजन बीइंग, और वो ज्यादा कहाँ होंगे? वो ज्यादा वहां होंगे जहां आपको ये पता है, फाइनेंसर को पता है कि उनकी रियलाइजेशन परसेंटेज प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, in fact negligible. Like I took the example of Maruti. तो मारुति में आपका वो रेट ऑफ इंटरेस्ट शायद 8% भी आ जाएगा. बट सपोज एक कोई ऐसा बिडर, कोई ऐसा सप्लायर है जिसका ज्यादा रिनाउंड नहीं है और उनकी जो रेटिंग इज जस्ट मार्जिनल है. इन दैट केस वो एलिजिबल तो होगा ट्रेड्स पर, बट कहीं भी उसको उतनी बिड्स नहीं मिल पाएंगी. और एंड अकॉर्डिंगली जो फाइनेंसर्स होंगे, दे विल गो फॉर द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू डिस्काउंट दैट पर्टिकुलर इनवॉइस. Okay. Okay. Next question is, in what ways do high interest rates on loans impact the financial stability and growth of MSMEs? Sorry, couldn't get it. Can you repeat again? Like if any of the entity avails the loan, which is which is having the high interest rate, so how it impacts the financial stability and growth of MSMEs? The participant wants to ask, is it worth it to avail the loan which is having the high interest rates? Okay. It's a good question. So generally होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ. मेरे कितने ऐसे clients हैं. There are clients who already having a lower rate of interest facility from a particular bank, right? उन्होंने 8.5, 8.5, 8.6 पर लिया है लोन. बट एट द सेम टाइम दे जनरली कम्स टू मी एंड आस्क मी कि सचिन जी, I went to my bank and because I am growing, I wanted much higher loans on the same rate. The banker has denied. They in fact comes to me and ask me ki can we have another line of loan from another bank or NBFC even at a higher rate. Why? Because they are getting a very handsome margin on that particular deal, and they know that they are going to earn say 30% in that deal, and even if they are paying 11% or 12%, it would be enough for them to grow, right? To grow on a future stream. So I think this answers the question. आपको अगर पता है कि आपका रेट ऑफ रिटर्न ऑन दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, ये जो पैसा आप ले रहे हैं, अगर वो अच्छा रिटर्न दे रहा है तो आप लीजिए. अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा रेट दे रहे हैं और उतना आपको नहीं कमाई होगी, देन ऑब्वियसली देयर इज नो पॉइंट टेकिंग लोन्स. Yeah, definitely. And the last question we do have is, how do perceived risks of banks affect the availability of financial products and services to MSME? How do we sorry, how do we How do the risks by the banks affect the availability of financial products and services to the MSMEs? I didn't get the question actually. Can you maybe mold this question, or I didn't get it actually. So so that particular person wants to ask what are the risks involved to various banks while I giving do also feel that the question is incomplete somewhere, but according to the question I do have, it seems like if any of the risk is perceived by the bank. So the participant wants to ask how it affects the financial product and services. Okay. So generally, I mean, this is a simple answer is that generally banks have their assessment models basis which they extend the loans, right? Generally, I have seen that first time borrowers, the borrowers which are borrowing for the first time, generally banks do the more due diligence than the ones who have already borrowed in historically, and they have paid the loan on time, right? So history has been created now. बैंक के लिए एक बोरोअर जिसने पहली बार लोन लेना है वो ज्यादा रिस्की बोरोअर है Yeah.
rather than जिस क्लाइंट ने पहले लोन लिया है और पे ऑफ किया है टाइम पर, तो उसकी हिस्ट्री सिबिल में क्रिएट हो गई, तो बैंक का वहां पर उतना रिस्क नहीं है। अब मान लो जो फर्स्ट टाइम बोरोवर्स है, जैसे स्टार्टअप्स हो गए, they are obviously high riskier, very high riskier loans, but then कहीं ना कहीं बैंक्स उनका बिजनेस मॉडल देखकर उनको लोन देता है, और अगर वो लोन बैड होता है, एनपीए होता है, या डिफॉल्ट होता है, डेलिंक्वेंट होता है, देन इन दैट केस it is bank's responsibility, and obviously banks will do each and every due diligence to protect, to get the money out of that particular client. तो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ये एक रियलिस्टिक सिनेरियो है जो पूछा है। जैसे सीजीटीएमएससी है, अब सीजीटीएमएससी इज अ प्योरली अनसिक्योर्ड लोन। उस केस में लास्ट ईयर किसी एक पर्टिकुलर बैंक, आई वुड नॉट द नेम ऑफ दैट बैंक, तो उस बैंक में सीजीटीएमएससी काफी सैंक्शन हुए, और वो सैंक्शन होने के बाद इस साल उनके अंदर डेलिंक्वेंसी आनी शुरू हो गई। what that bank did, they have stopped funding in CGTMSE because they know that their percentage of delinquencies is getting higher in that particular product, तो उन्होंने वो प्रोडक्ट बंद कर दिया, और अब वो कंप्लीटली कोलेटरल बेस्ड लोन पर आ गए हैं, राइट। तो बैंक्स अपना धीरे धीरे इस चीज को एनालाइज करते हैं कि हमारी रिकवरी फास्ट हो रही है, नहीं हो रही है, या रिकवरी कलेक्शंस में केसेस हैं, कलेक्शन टीम के पास जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बैंक को एक कॉल लेनी पड़ती है, बेसिस दैट वो प्रोडक्ट ओपन होता है और क्लोज होता है। Okay. Sorry, sir, but we have also received a few questions. This question is regarding if the individual is already having a home loan and he is also having a partnership firm which is registered under MSME. Okay. So can he also take the loan from the bank at a lower interest rate? Yes. Based on the profits as well as turnover levels, that particular buyer, that particular client can definitely go and ask for the more loans. So we are the ones who are specialized in funding to MSMEs. That may be in the form of home loan, that may be in the form of loan against property, or that may be in the form of working capital funding. Yeah. तो वो ले सकता है based on the फाइनेंशियल्स दे जनरेट, तो वो फाइनेंशियल्स जो ऑडिटेड फाइनेंशियल्स होंगे उसके बेसिस पर देयर आर न्यूमरस प्रोडक्ट्स बाय न्यूमरस बैंक्स। तो वी सो आई वुड से जहां जिसको भी कोई अपनी क्वेरी लोन की करनी है, राइट, बैंक्स में आई एम अवेलेबल नॉट ओनली फॉर लोन क्वेरी, फॉर एनी क्वेरी, राइट। तो वी आर बेस्ड आउट इन पटेल नगर, सेंट्रल दिल्ली, and you can connect to me anytime for any of your clients needs, right? And we will be in a better position to make you understand, to make you explain कि कैसे कैसे फंडिंग होती है, कैसे कैसे हम हेल्प करते हैं MSMEs को। For the assistance purpose, you can also share your contact details for the participants if in case they want to contact you. Yes, I think my slide has that detail, but I can. You want my number that is there in the slide? I think. Achha, it is not visible. So my mobile number is 981 067 Okay. 3050. 3050. So I repeat 981 067 3050. Yes, correct. Okay. Last question we do have is regarding do bank provide any post loan support for the MSME? Yes. We definitely provide the after sales support also. In fact, we have lot many engagements and agreements with our clients where we are the virtual banker. So I'll tell you, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया, दैट वाज द रीजन ये थोड़ा सा डिले हो गया, अदरवाइज आई वुड हैव कवर्ड द चैलेंजेस आल्सो, बिकॉज चैलेंजेस प्रोबेबली आई विल कवर इन द नेक्स्ट
next time, maybe next week or next to next week. But मैं आपको बताता हूँ, हमारा जितना भी बैंक, so I'll tell you, there has to be certain person, financial advisor in the form of virtual banker, जो आपकी हेल्प कर पाए और जिसको बैंकिंग का एक्सपीरियंस हो. जनरली हमारे जितने भी सीए भाई हैं, उन्होंने कुछ मतलब कई ऐसे हैं, आई थिंक 90% हैं जो दे आर डूइंग देयर ओन प्रैक्टिस और दे आर प्रैक्टिसिंग, दे आर वर्किंग इन अ टैक्स प्रोफाइल और अ ऑडिट प्रोफाइल, राइट? Fortunately or unfortunately, I have been into banking since I became CA, and therefore we, or any of the companies like us, we have a good amount of experience in handling the clients as well as handling the banks. तो हम as a virtual bankers काम करते हैं. Anyone can contact to us for any of the issues and the consistent or ongoing services to the various clients. तो हम लोन कराने के बाद भी क्लाइंट से जुड़े रहते हैं. We have a team of almost 70-80 people based out of Patel Nagar only, and we can connect and we can be of any help to any of the CA or any other person. Thanks, Juhi. Thanks from my side. I think, hope I have covered all the questions. Yeah. Thank you, sir, for this wonderful session. Let me start the vote of thanks. So, as we have come to the conclusion of today's insightful webinar, myself, CA Juhi Goel, on behalf of the Committee on MSME and Startup, I would like to extend my heartfelt gratitude to CA Sachin Daganji for sharing his invaluable expertise on challenges faced by MSME in banks and banking products for MSME. And my last thanks goes to the participants for having the enthusiasm, and the questions made the webinar truly interactive and informative. Thank you, sir. Thanks, Juhi. Thank you so much, and thank you all the participants also. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you, Joey. Thank you you for being a coordinator. Thanks a lot. you.